पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से मटेरियल का उपयोग हुआ इन ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में। पहले स्टेनलेस स्टील का उपयोग हुआ, फिर टाइटेनियम का उपयोग हुआ नेल्स और प्लेट बनाने में, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोर्टिकल बोन का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मॉडिफाइड टाइटेनियम which is made porous and modified to simulate the modulus of elasticity of the cortical bone को बनाया गया और उसको उपयोग में किया जा रहा है। उसके बाद कार्बन फाइबर्स का पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लेटिंग और नेलिंग में क्या अंतर है। पहले प्लेट जो है वो वेट बियरिंग इम्प्लांट है और नेल्स जो है वेट शेयरिंग इम्प्लांट है। वो जब हम लोग वेट बियर करते हैं, वेट बियरिंग बोन पर, बोन के फ्रैक्चर के बाद, नेलिंग और प्लेटिंग के बाद, तो पूरा वेट जो है वो प्लेट ले लेता है और नेल जो है वो शेयर करता है बोन से और नेल से। जो पूरा वेट जो लेते हैं वो शेयर करता है बोन से, और प्लेट जो है वो पूरा वेट बॉडी का ले लेता है। अतः उसे फ्रैक्चर का, नेल का ढीला होने का और एक्सेंट्रिक फोर्स लगता है प्लेटिंग में, प्लेट में, वेयर एज the force which is applied on the weight bearing bone is central in case of nailing. So the nail is a better implant than plate. So these are the differences in plating and nailing of the fracture of long bone, of weight bearing bone of the human body. So plate is weight bearing, whereas the nail is weight sharing. In the cases of plating, the force is eccentric, whereas in nails the force is central while we bear weight on weight bearing bone. So the chylus form is primary chylus in case of plating, whereas in case of nailing, the chylus is secondary chylus, which is supposed to be very, very strong chylus. And after removal of the implant, there is no chance of refracture. Whereas after removal of the plate, there is chance of refracture at the fracture side. Moreover, there is stress shielding in cases of plating, whereas in cases of nailing, there is no stress shielding. जो अंडर सरफेस ऑफ द प्लेट होता है वहाँ हड्डी कमजोर हो जाता है धीरे धीरे, और इम्प्लांट रिमूवल करने के बाद वीकनेस के कारण रिफ्रैक्चर होने का चांस रहता है। अतः प्लेट रिमूवल के बाद कुछ दिन लिम्फ को रेस्ट में रखना पड़ता है, और क्योंकि नेल में निकालने के बाद लिम्फ को रेस्ट में नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि कैलस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और सेकेंडरी कैलस रहता है और उसे रेस्ट का जरूरत नहीं रहता, और उस पर वेट बियर पेशेंट कर सकता है फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी। सो these are the differences, and the most important is in case of plating there is soft tissue stretching. So जितना आप सॉफ्ट टिश्यू को इंसर्ट करिएगा वो आपको इंसर्ट करता है in the form of infection. So the infection rate in plating is more than about 2 to 8% so far as the my knowledge is concerned, and in the best condition of the OT, whereas in nailing it is about 1%, because the closed nailing is done, no soft tissue stripping, no disturbance in the periosteal blood supply, no disturbance in the endosteal blood supply. So these are the differences in plating and nailing.
So we have also discussed about the material used in orthopedic implants, like stainless steel, titanium, and titanium elastic nails, and carbon fibers. Uh, about the material used in the carbon fibers is supposed to be just to recapitulate the best implant, because the modulus of elasticity of this carbon fiber is about same as the modulus of elasticity of vertical bone of the human body. So it is, and there are 4C. We can just to remember the advantages of the carbon fibers so far as the orthopedic implants of carbon fibers are concerned. It is costly, it is not cost effective, and it is lightweighted, because इसी से जहाज का बॉडी बनता है, सो इट इज लाइट वेटेड। और जिस तरह से जहाज जो है हवाई जहाज, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे -40 डिग्री और 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, उसी तरह से ये नेल भी, कार्बन फाइबर्स का जो नेल होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हर कंडीशन में उसको वेट बियरिंग को बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। सो इट इज लाइट वेटेड एंड not cost effective. It is very costly affairs in comparison to titanium and stainless steel. So number 3 is no cold welding. कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है कि जब हम इम्प्लांट निकालते हैं तो इम्प्लांट रिमूवल के समय कभी कभी स्क्रू जाम हो जाता है, वो प्लेट में जाम हो जाता है प्रोलॉन्ग प्रेशर के कारण, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। सो वो जामिंग को हम लोग कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो कोल्ड वेल्डिंग जो है वो कार्बन फाइबर्स इम्प्लांट्स में नहीं होता है। सो contouring, the third C, it is not cost effective. There is no cold welding in cases of carbon fiber implants. And third C is the contouring. जैसे हम लोग स्टील के इम्प्लांट को या टाइटेनियम के इम्प्लांट प्लेट को हम लोग ऑपरेशन के समय मैन्युअली कंटूर कर सकते हैं, लेकिन इसको कंटूर नहीं कर सकते। The fourth C, the 1C is the cost, which is very costly. The second C is the cold welding, and third C is the contouring. The contouring is not possible at the time of surgery in OT, and वो क्या डायलर है, फिल्मी डायलर कि उस पर टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, उसी तरह यह कार्बन फाइबर्स जो है, कार्बन फाइबर इम्प्लांट्स जो है वो टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं कर सकते, उसको कंटूर नहीं कर सकते हैं, उसको कस्टम मेड इम्प्लांट्स बनाना पड़ता है, कंपनी से ही उसको कंटूर करके दिया जाता, सप्लाई किया जाता है। और फोर्थ सी इज द कोरोजन रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इसमें कोरोजन नहीं होता है, लाइक लीचिंग और पिटिंग ऑफ इम्प्लांट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टील इम्प्लांट्स, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम इम्प्लांट्स में भी हो सकता है, जो कि कार्बन फाइबर्स में नहीं होता है। और इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैंसर पेशेंट, द फोर्थ सी, वन मोर सी, it is very useful in cancer patient, because it is radiolucent and not radio opaque. So हम लोग चारों तरफ बोन के फ्रैक्चर के चारों तरफ जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है वो कैलस बन रहा है कि नहीं उसको एक्सेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज इट इज रेडियोल्यूसेंट। एंड कैंसर बोन ट्यूमर का इवेशन हो रहा है कि नहीं थेरेपी देने के बाद,
सीटी स्कैन और एमआरआई और एक्सरे करके हम लोग देख सकते हैं, रेडियोलॉजिकली हम लोग एसेस कर सकते हैं कि बोन ट्यूमर का रिग्रेशन हो रहा है कि नहीं. सो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. नंबर टू, it cannot be controlled manually in the OT. And third C is the corrosion resistant. And fourth C, it is very useful in cancer patient. And other advantages are there is no stress shielding in case of steel implants as well as the titanium plate. There is a stress shielding, and in case of carbon fibers plate, there is no stress shielding. The weakening of the bone under the plate is not there in cases of carbon fibers plate. So these are the advantages and disadvantages of कार्बन फाइबर प्लेट. एंड आजकल मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा इम्प्लांट लगाइए, ऐसा प्लेट लगाइए, ऐसा नहीं लगाइए जो अंदर अंदर गल जाए. तो ये पॉसिबल है, थियोरेटिकली पॉसिबल है. मैग्नीशियम एक मेटल है जो यूज होता है बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट बनाने में. और सिंथेटिक पॉलीमर लाइक पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA एंड PAA पॉलीएसिटिक एसिड यूज होता है बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट बनाने में. लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोर्टिकल बोन का करीब करीब 10 से 12 होता है, जबकि ये सिंथेटिक पॉलीमर का 2 से 5 होता है. अतः बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अतः वेट बियरिंग बोन में जैसे टिबिया एंड फीमर के फ्रैक्चर में इसको नहीं यूज कर सकते हैं. ये जल्दी टूटने का डर रहता है, कमजोर रहता है, क्योंकि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करीब करीब 4 गुना कम रहता है cortical bone के modulus of elasticity. So the use of this synthetic polymer for the orthopedic, so far as the orthopedic implants are concerned, is limited to the non-weight bearing bone like facial bones and pediatric fractures. दूसरा प्रॉब्लम यह होता है कि कभी कभी फ्रैक्चर जुड़ने से पहले, फ्रैक्चर का हीलिंग होने से पहले ही वो गल जाता है, शरीर में गल जाता है और तब फिर दूसरा इम्प्लांट डालना पड़ सकता है. अभी तक ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि ऐसा इम्प्लांट, ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर डेवलप किया जाए कि बोन हीलिंग के बाद ही उसका बायोडिग्रेडेशन हो. ऐसा